Today we turn to Romans and chapter 2 and verse 16. आज हम रोमियो के पत्र के दूसरे अध्याय और 16वें वचन की ओर मुड़ते हैं। Here Paul says that in the final day, when God judges all men, यहाँ पौलुस कहता है कि अंतिम दिन में जब परमेश्वर सभी मनुष्य का न्याय करेंगे, it's going to be judged, people are going to be judged according to the gospel that he preaches here in Romans. लोगों का न्याय उस सुसमाचार के अनुसार किया जाएगा जो पौलुस ने यहाँ रोमियो में प्रचार किया है। And what God is going to judge here, it says, is the secrets of men. और यहाँ यह लिखा है कि परमेश्वर जो न्याय करेंगे वह मनुष्य के गुप्त कामों का होगा। The secrets are those things in our lives which other people don't know anything about. गुप्त बातें वे होती है जो हमारे जीवन की ऐसी बातें हैं जिनके बारे में दूसरे लोग कुछ नहीं जानते। Motives, thoughts, attitudes, these are going to be more important in the final day प्रयोजन, विचार और मानसिकता ये अंतिम दिन में और भी महत्वपूर्ण होंगे than what other people know. The hidden things, the actions and words that your friends and others who know you publicly know nothing about. दूसरों को जो मालूम होता है उसकी तुलना में छुपी हुई बातें, वे कर्म और शब्द जो तुम्हारे दोस्त और तुम्हें जानने वाले सार्वजनिक रूप से नहीं जानते, वे अधिक महत्वपूर्ण होंगे। It's very important for you to remember that these are the things which are going to matter in the day when God judges all people. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप याद रखें कि ये वही बातें हैं जो उस दिन मायने रखेंगी जब परमेश्वर सभी लोगों का न्याय करेंगे। It's a sad thing that many Christians don't think of this. If you really took this seriously, you would be delivered from living before the face of men. यह दुख की बात है कि बहुत से मसीही इसे गंभीरता से नहीं सोचते। अगर आप सचमुच इसे गंभीरता से लेते तो आप लोगों के सामने जीने के बोझ से मुक्त हो जाते। You wouldn't care anymore for what people thought about you. आप अब इस बात की परवाह नहीं रखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। You'd be much more concerned to know what God thinks about your private life, your motives, your attitudes, your thoughts, your financial dealings, which other people know nothing about. आप बहुत अधिक चिंतित होंगे यह जानने के लिए कि परमेश्वर आपके निजी जीवन, आपका प्रयोजन, आपके दृष्टिकोण, आपके विचारों और आपके वित्तीय मामलों के बारे में क्या सोचते हैं जिनके बारे में दूसरे लोग कुछ नहीं जानते। And the hidden things in your life. और आपके जीवन की छुपी हुई बातें। And then in verse 17 onwards up to verse 29, Paul is, through the Holy Spirit, describing the guilt of the religious sinner. और फिर वचन 17 से लेकर 29 तक पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा धार्मिक पापी के दोष को वर्णित कर रहा है। It's more difficult for religious people to recognize that they are sinners than for out and out immoral, ungodly people. धार्मिक लोगों के लिए यह स्वीकार करना कि वे पापी है उन खुलेआम अनैतिक और अधार्मिक लोगों की तुलना में अधिक कठिन होता है। And here he's talking about Jews because they were the religious people of that time. But we could apply this passage to Christians today, who are the religious people of our time. और यहाँ यह यहूदियों की बात कर रहा है क्योंकि वह उस समय के धार्मिक लोग थे, लेकिन हम इस वचन को आज के मसीहों पर लागू कर सकते हैं जो हमारे समय के धार्मिक लोग हैं। Who hold the Bible, go to church, sing songs, pray, fast, give money for God's work, have missionary activity, and all the other trappings of religion. जो बाइबल पकड़ते हैं, कलीसिया जाते हैं, भजन गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, परमेश्वर के काम के लिए दान देते हैं, मिशनरी गतिविधियों में भाग लेते हैं और धर्म के सभी अन्य बाहरी काम करते हैं। And he says here, if you bear the name Jew, and we could say if you bear the name Christian, and rely upon the law, that means you rely upon the Bible, it's God's word. और यहाँ वो कहता है अगर तुम यहूदी के नाम धारण करते हो, और हम कह सकते हैं कि अगर तुम मसीह नाम धारण करते हो और तुम व्यवस्था पर भरोसा करते हो, इसका मतलब है कि तुम बाइबल को परमेश्वर का वचन मानते हो। And you boast in God
That means you claim to know God personally, you claim to know His will. Verse 18, you claim to approve the things that are essential, being instructed out of the law or God's word. और तुम परमेश्वर पर गर्व करते हो, जिसका मतलब है कि तुम दावा करते हो कि तुम परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानते हो, तुम उसके इच्छा अनुसार जानने का दावा करते हो। आयत 18 में तुम यह दावा करते हो कि तुम उन बातों को मंजूर करते जो आवश्यक है, जिन्हें तुम व्यवस्था या परमेश्वर के वचन में सीखते हो। And you are confident that you yourself are a guide to the blind, a light to those who are in darkness, a corrector of the foolish, a teacher of the immature. और तुम आश्वस्त हो कि तुम स्वयं अंधों के मार्गदर्शक, अंधकार में पड़े लोगों के लिए प्रकाश, मूर्खों के सुधारक और अविकसित लोगों के शिक्षक हो। Now, these are phrases that express the attitude of many preachers today. Many Christian preachers feel they are a guide to the blind, a light to those in darkness, and a corrector to the foolish, a teacher of the immature, all of which अब ये वाक्यांश है जो आजकल के कई मसीह प्रचारकों का रवैया है, जो व्यक्त करते हैं कि वे अंधों के मार्गदर्शक, अंधकार में रहने वालों के लिए प्रकाश, मूर्खों के सुधारक और अल्प वयस्कों के शिक्षक हैं। is true if a man is upright, sincere, and if his life backs up his message, the words that he preaches. जो सब सही होगा अगर कोई आदमी सही, सच्चा और ईमानदार हो और उसकी जिंदगी उसके संदेश का समर्थन करती हो जो वो प्रचार करता है। But here Paul is speaking to those who boast about these external things but don't have a life that backs up what they preach. लेकिन यहाँ पौलुस उन लोगों से बात कर रहा है जो इन बाहरी बातों पर घमंड करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी उस संदेश का समर्थन नहीं करती जो वे प्रचार करते हैं। And he speaks here about those who teach others. And he says in verse 21, you who teach another, don't you teach yourself? और वो यहाँ उन लोगों के बारे में बात करता है जो दूसरों को सिखाते हैं, और वो कहता है वचन 21 में, तुम जो दूसरों को सिखाते हो, क्या तुमको खुद को नहीं सिखाना चाहिए? You who preach that one should not steal, do you steal? See, stealing is not just major things like robbing a bank or things like that. You could steal a paper or a pen from your office. तुम जो प्रचार करते हो कि चुराना गलत है, क्या तुम खुद चुराते हो? देखो, चोरी का मतलब सिर्फ बड़े अपराध जैसे बैंक लूटना या ऐसी चीजें नहीं है। तुम अपने ऑफिस से एक कागज या पेन भी चुरा सकते हो। You could steal medicines from your hospital, small little things which are called pilfering. तुम अपने अस्पताल से दवाइयां भी चुरा सकते हो। ये छोटे छोटे सामान होते हैं जिन्हें कहते हैं चोरी हम या पिल्फरिंग। And what Paul is saying is, don't just think of these big robbers who steal big things. Do you steal small things? और जो पौलुस कह रहा है वो यह है कि सिर्फ उन बड़े लुटेरों के बारे में मत सोचो जो बड़ी चीजें चुराते हैं। क्या तुम छोटी छोटी चीजें चुराते हो? What about stealing a person's reputation? When you speak evil about someone, do you know that you're doing something worse than stealing 100 rupees from his pocket? एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा चुराने के बारे में क्या? जब तुम किसी के बारे में बुराई करते हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम उसके जेब से 100 रुपए चुराने से भी बदतर काम कर रहे हो? You're stealing something more valuable to him than 100 rupees. You're destroying his reputation. You're stealing it. तुम उससे 100 रुपए से भी ज्यादा कीमती कुछ चुरा रहे हो। तुम उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट कर रहे हो। तुम उसे चुरा रहे हो। And so he says, you who preach that one should not steal, do you steal? और इसलिए वो कहता है, तुम जो प्रचार करते हो कि चोरी नहीं करना चाहिए, क्या तुम खुद चोरी करते हो? You who say that one should not commit adultery, do you commit adultery? Jesus said that if you lusted after a woman in your mind, you are committing adultery. तुम जो कहते हो कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए, क्या तुम व्यभिचार करते हो? यीशु ने कहा है कि अगर तुम किसी महिला के प्रति मन में वासना रखते हो तो तुम व्यभिचार कर रहे हो। So when you look down with horror at some person who has fallen into sin externally in this area, he says, what about you? तो जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को घृणा से देखो जो बाहरी रूप से इस पाप में गिर गया है, वो कहता है, तुम्हारे बारे में क्या? How's your thought life? Do you commit adultery? He's trying to point out to these religious people that you are just as bad sinners as these others and just as guilty
as anybody else. तुम्हारा विचार जीवन कैसा है? क्या तुम व्यभिचार करते हो? वो इन धार्मिक लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम भी उतने ही बुरे पापी हो जितने ये दूसरे, और तुम भी उतने ही दोषी हो जितने की और कोई। You who abhor idols, do you rob temples? See, idolatry is not just external. It's not just bowing down before an idol of wood or stone. Anything that takes the place of God in your life, it could be money, it could be your job, it could be your house, that's idolatry. तुम जो मूर्तियों से घृणा करते हो, क्या तुम मंदिरों को लूटते हो? देखो, मूर्ति पूजा सिर्फ बाहरी बात नहीं है। यह केवल लकड़ी या पत्थर की मूर्ति के आगे झुकने तक सीमित नहीं है। कोई भी चीज जो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की जगह ले ले, वो मूर्ति पूजा है। वह चीज पैसा हो सकती है, तुम्हारी नौकरी हो सकती है, या तुम्हारा घर, यही मूर्ति पूजा है। And he says, you who claim to abhor idols, is there idolatry in your life? और वो कहता है, तुम जो यह दावा करते हो कि तुम मूर्तियों से घृणा करते हो, क्या तुम्हारे जीवन में मूर्ति पूजा है? In other words, to sum it all up, you who boast in the law or in God's word, are you breaking that word in areas where perhaps other people don't know? Do you dishonor God by the way you live? दूसरे शब्दों में कहे तो तुम जो व्यवस्था या परमेश्वर के वचन पर घमंड करते हो, क्या तुम उस वचन का उल्लंघन उन क्षेत्रों में कर रहे हो जहां शायद और लोग नहीं जानते? क्या तुम अपने जीने के तरीके से परमेश्वर का अपमान कर रहे हो? And you have these very sad words, a quotation from the Old Testament. Here in verse 24, for the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you, just as it is और written. यहाँ वचन 24 में बहुत ही दुखद शब्द है, पुराने नियम से एक उद्धरण, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा होती है, जैसा कि लिखा भी है। One of the prophets told Israel that the name of God is blasphemed among all the heathen nations because the way you fellows are एक living. भविष्यवक्ता ने इज़राइल से कहा था कि तुम्हारे जीवन के तरीकों के कारण सभी अन्य जातियों में, राष्ट्रों में परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। And I believe that is true around the world, that the name of Jesus Christ is so dishonored in many, many lands today because of the way those who take the name of Christ and who claim to be Christians live. और मेरा विश्वास है कि यह आज दुनिया भर में सच है। यीशु मसीह के नाम का बहुत सारे देशों में अपमान होता है, केवल इसलिए क्योंकि जो लोग मसीह का नाम लेते हैं और अपने आप को मसीही कहते हैं, वे जैसा जीवन जीते हैं वो उसके योग्य नहीं होता। And I believe that if you're a Christian, this should bring great sorrow in your heart, that your life does not back up your claim to be a disciple of Jesus और Christ. मेरा विश्वास है कि यदि आप एक मसीही है तो यह बात आपके हृदय में गहरा दुख लानी चाहिए कि आपका जीवन उस दावे का समर्थन नहीं करता जो आप यीशु मसीह के चेले होने के रूप में करते हैं। Do people in your office, in your home, your neighbors, your relatives see a difference in your attitude? What about when it comes to property matters? Do they find a freedom from covetousness and the love of money and earthly things in you if you claim to be a disciple of Jesus? क्या आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, क्या वे आपके व्यवहार में कोई फर्क देखते हैं? जब बात संपत्ति की आती है, तब क्या वे आप में लोभ और धन तथा सांसारिक चीजों के प्रति प्रेम से मुक्त होने का प्रमाण पाते हैं? यदि आप दावा करते हैं कि आप प्रभु यीशु के चेले हैं। The name of God, the name of Jesus Christ is greatly dishonored in many lands today because of the way Christians आज live. बहुत से देशों में परमेश्वर का नाम, यीशु मसीह का नाम इस कारण से बहुत अपमानित हो रहा है क्योंकि मसीह जिस प्रकार का जीवन जीते हैं वह उस नाम के योग्य नहीं है। And then he goes on to speak about circumcision. Today we could say baptism or breaking of bread or any ritual. और फिर वह खतना के विषय में आगे बात करता है। आज के समय में हम कह सकते हैं यह बपतिस्मा हो सकता है, रोटी तोड़ना हो सकता है, या कोई और धार्मिक रीति हो सकती है। These things are of value if you obey God's word. I mean, what he says here about circumcision in verse 25 could be applied to baptism or the Lord's table or any other activity, religious ये activity. चीजें तब मूल्यवान होती है जब तुम परमेश्वर के वचन का पालन करते हो। मेरा मतलब है कि यहाँ वचन 25 में वह खतना के बारे में कहता है
उसे बपतिस्मा, प्रभु का भोज या किसी और धार्मिक क्रिया पर भी लागू किया जा सकता है। or ritual. It's of value only if you obey God's word. But if you transgress God's word, then your being baptized is as good as not being baptized. या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, इसका मूल्य तभी है जब तुम परमेश्वर के वचन का पालन करते हो, लेकिन अगर तुम परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हो तो तुम्हारा बपतिस्मा ऐसा ही है जैसे तुम बपतिस्मा न किए हो। Your breaking bread is as good as not breaking bread. Your circumcision has become uncircumcision. तुम्हारा रोटी तोड़ना ऐसा ही है जैसे तुम रोटी न तोड़ो, और तुम्हारा खतना ऐसा हो गया है जैसे खतना न हुआ हो। And then you look at another man who's not been baptized or not circumcised. If he keeps verse 26, the requirements of God's word, God will consider his unbaptized state as good as baptism, because even though he didn't go through the ritual of baptism, he actually obeyed God's word. और फिर तुम ऐसे व्यक्ति को देखते हो जिसने बपतिस्मा नहीं लिया या खतना नहीं किया, लेकिन यदि वह परमेश्वर के वचन की मांगों का पालन करता है तो परमेश्वर उसकी बिना बपतिस्मा की स्थिति को बपतिस्मा के समान मानेंगे, क्योंकि उसने भले ही बपतिस्मा का संस्कार नहीं किया हो, पर उसने वास्तव में परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानी। See, circumcision was a way in which people testified, I belong to God, I am not part of the heathen. And baptism is a way by which we profess that we've broken off with the world and belong to Christ. उनको खतना एक तरीका था जिससे लोग यह प्रमाणित करते थे कि वे परमेश्वर के हैं और वे अन्य जातियों का हिस्सा नहीं है, और बपतिस्मा एक तरीका है जिससे हम यह मानते हैं कि हमने संसार से अलग होकर मसीह से जुड़े हैं। But it's a mere ritual if we don't follow in the footsteps of Jesus Christ. मसीह से जुड़ना तो एक बात है, लेकिन यदि हम यीशु मसीह के पद चिन्हों पर नहीं चलते तो यह केवल एक अनुष्ठान भर है। And in that case, if it says here, if a man's physically uncircumcised and keeps the law, verse 27, will he not judge you? Won't he condemn you who outwardly has gone through the ritual, but you don't keep the और word? ऐसे में यदि कहा गया है कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बिना खतना वाला हो और फिर भी व्यवस्था का पालन करे, वचन 27, तो क्या वह तुम्हें न्याय नहीं करेगा? क्या वह तुम्हें दोष नहीं देगा जो केवल बाहरी रूप से संस्कार कर चुका है लेकिन वचन का पालन नहीं करता? Then he says he's not a Jew who's one outwardly, neither is circumcision that which is outward in the flesh, but he's a Jew who is one inwardly, and circumcision is that which is of the heart. फिर वह कहता है कि जो केवल बाहरी रूप से यहूदी है वो यहूदी नहीं है, और जो केवल शरीर से खतना है वह खतना नहीं है, बल्कि वह यहूदी है जो अंदर से है, और खतना वो है जो हृदय का होता है। We could apply the same to baptism. Baptism is a reality for those who have actually put off the old man and decided to walk in newness of life by the power of the Holy हम Spirit. इसे बपतिस्मा पर भी लागू कर सकते हैं। बपतिस्मा उन लोगों के लिए वास्तविकता है जिन्होंने वास्तव में पुराने स्वभाव को त्याग दिया है और पवित्र आत्मा की शक्ति से नए जीवन में चलने का निर्णय लिया है। Not just a matter of going into the water and coming out, but one whose heart has been यह circumcised. केवल पानी में जाकर बाहर आने की बात नहीं है, बल्कि वह है जिसका हृदय का खतना हो चुका हो। And by the Spirit, not the letter. And for such a man, it says here, his praise is not from men, but from और वह God. आत्मा द्वारा होता है, अक्षर द्वारा नहीं। और ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ कहा गया है कि उसकी प्रशंसा मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से होती है। And that's because he seeks not the praise of men, but the praise of God. So ultimately it boils down to whose honor are you seeking? और ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मनुष्य की प्रशंसा नहीं बल्कि परमेश्वर की प्रशंसा चाहता है। इसलिए आखिरकार यह बात आती है कि तुम किस सम्मान की चाह रखते हो। Are you seeking praise from men? Then you will just be a religious sinner. The way to be free from it is to seek the praise of God. क्या तुम मनुष्य से प्रशंसा चाहते हो तो तुम सिर्फ एक धार्मिक पापी बनोगे। इससे मुक्ति पाने का रास्ता है कि तुम परमेश्वर की प्रशंसा चाहो।